اعلان کیا گیا کہ جہاز آج رات کو 10 بجے روانہ ہو جائے گا۔ خلاصی اپنی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ اس وقت میں نے اوڈے کو دیکھا جو مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ میرے قریب آیا۔ اس کی چال میں بڑی خود اعتمادی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، ہیلو پال، کوئی الجھن یا پریشانی تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں مسٹر ڈیک، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بولا، مجھے معاف کرنا، کچھ وقت میں تم سے دور رہا، لیکن سیکنڈ آفیسر ہونے کی حیثیت سے جہاز کے کچھ انتظامی امور میرے سپرد کر دیے گئے تھے۔ تم نے سن لیا ہوگا کہ ہم روانہ ہونے والے ہیں۔ تمہارا دوست تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، اور اوڈے گردن ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہم لوگ نہایت کامیابی کے ساتھ اپنے مرحلے سے گزر چکے تھے اور کسی کو ہم پر شبے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگر ماحول میں یہ وحشت خیزی نہ ہوتی اور خلاصی ایک دوسرے کے شناسا ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے اس قدر غیر متعلق نہ ہوتے تو شاید ہمیں کافی مشکلات پیش آتی۔ کچھ لوگ بلا وجہ کے دوست بن جاتے اور انہیں شبہ ہو جاتا، لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا۔ یہ گویا سرپھروں کا غول تھا جنہیں ایک دوسرے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ شاید کوئی کسی کو دوست نہیں بناتا تھا، بس جو کسی کے ساتھ جتنی دیر بیٹھ گیا، اور جو الگ تھلگ رہا اسے کسی نے گھاس نہ ڈالی۔ یہ معمول ہمارے لیے نہایت فائدہ بخش تھا۔ رات کو 10 بجے خصوصی روشنیاں کی گئی تھیں تاکہ خلاصی اپنا کام کر لیں۔ پھر خلاصیوں کے ہیڈ انہیں اوپر پہنچانے کی ہدایت کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد تقریباً تمام خلاصی، جن میں اور جرکن بھی شامل تھے، جہاز کے اوپر پہنچ گئے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سیڑھیاں ہٹا لی گئی تھیں۔ وقت مقررہ پر جہاز نے لنگر اٹھا دیے اور آہستہ آہستہ گہرے سمندر کی جانب بہنے لگا۔ خلاصی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ یہ رات سونے کی رات نہیں تھی۔ 20 خلاصیوں کے ایک گروہ کی اوڈے کمان کر رہا تھا اور ان کے لیے احکامات صادر کر رہا تھا۔ وہ سب اس کے احکامات کی تعمیل کر رہے تھے۔ جرکن اس وقت میرے قریب ہی موجود تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، یوں لگتا ہے جیسے اب ہم بہتر حالت میں ہیں۔ میں نے گہری نگاہوں سے جرکن کو دیکھا اور کہا، کمال ہے، تم گفتگو کر رہے ہو۔ وہ بولا، میں اتنا بد اخلاق نہیں ہوں میرے دوست، لیکن فرار کا تصور اور اپنے لوگوں سے جا ملنے کے احساس نے مجھے اتنا مزمحل کر دیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی تو ہم ابتدائی مراحل میں ہی ہیں۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے لمحات کیسے ہوں؟ تاہم اگر تم نے میری بے رخی کو محسوس کیا ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں مسٹر جرکن، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خاموش رہتے رہتے زبان اینٹ کر رہ گئی ہے۔ وہ بولا، میرا خیال ہے اب اگر ہم دونوں ساتھ بھی رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں، جیسا کہ ہمارے چیف نے کہا، ہمیں باہر طور ایک دوسرے سے لا تعلق رہنا ہوگا تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں ہم خصوصیت نہ اختیار کر سکیں۔ جرکن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک کہتے ہو۔ پھر بولا، سیکنڈ آفیسر، تو یوں لگتا ہے جیسے ساری زندگی جہاز پر خلاصیوں کی کمان کرنے میں گزار چکا ہے۔ دیکھو، کہیں بھی اس کے انداز میں کوئی لچک نہیں پائی جاتی۔ میں نے جواب نہیں دیا تو جرکن آگے بڑھ گیا۔ میں خود بھی اوڈے کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی وہ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے جہاز کے تمام معاملات سے بخوبی واقف ہو۔ رات کو 3 بجے تک یہ مصروفیات جاری رہیں اور جب جہاز اطمینان بخش انداز میں آگے بڑھنے لگا تو خلاصیوں کو آرام کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ 20 افراد کے اس گروپ میں 8 آدمیوں کی ڈیوٹی رات کو تھی۔ بقایا کی ڈیوٹی صبح کو لگائی جانے والی تھی۔ چنانچہ رات کے اس آخری حصے میں بھی سونے کا موقع مل گیا اور دوسری صبح پھر مجھے جگانے والا اوڈے ہی تھا۔ اس نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، تمہاری ڈیوٹی کا وقت شروع ہو گیا ہے، اپنا کام انجام دو۔ میں نے ہلکا سا ناشتہ کیا جو جہاز کے ایک حصے میں تمام خلاصیوں کے لیے رکھ دیا گیا تھا تاکہ اپنی مرضی سے اٹھائیں اور پیٹ بھر لیں۔ جہاز کا یہ سفر تقریباً 6 دن تک جاری رہا اور کسی حادثے کا شکار ہوئے بغیر ہم لوگ ایک بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ یہاں چاروں طرف ویرانی اور آسیب زدہ خاموشی مسلط تھی۔ جہاز ایک عارضی ڈیک کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن جہاں کوئی چیز اتاری نہیں گئی۔ البتہ 4 گھنٹے کے بعد کچھ ٹرک ساحل پر پہنچے اور عارضی ڈیک سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ ٹرکوں پر شراب کے بیرل لدے ہوئے تھے جنہیں جہاز پر چڑھانا خلاصیوں ہی کا کام تھا۔ میں خود بھی اس کام میں مصروف رہا اور کافی دیر تک بار برداری کرتا رہا۔ شام ہوئی تو چائے تقسیم کی گئی۔ چائے کا ایک بڑا مگ ہاتھ میں لیے ہوئے اوڈے میرے پاس پہنچا۔ اس نے چائے کا ایک لمبا گھونٹ لے کر اسے میدے میں اتارتے ہوئے کہا، جہاز یہاں سے بھی رات کو ہی روانہ ہوگا۔ رات تک ہم لوگ حسب معمول اپنا کام انجام دیتے رہیں گے، لیکن جب جہاز کی سیڑھی ہٹا لی جائے تو اس وقت ہمیں سمندر میں اتر جانا ہوگا۔ تم یقیناً پانی میں اپنا کام انجام دے سکو گے۔ میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے اوڈے کو دیکھا اور بولا، کیوں نہیں، میں بآسانی تیر سکتا ہوں۔ بولا، بات اس وقت تیرنے کی نہیں بلکہ جہاز کے ڈھانچے سے تھوڑی دور جا کر سمندر میں چھپ جانے کی ہے۔ میں نے کہا، مطمئن رہو، مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وہ بولا، بائیں سمت کی وہ جھاڑیاں دیکھ رہے ہو، وہ اس طرف جو جھاڑیوں کے جھنڈ ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں۔ وہ بولا، ہماری منزل وہی ہوگی۔
जहाज के रवाना होने तक हम इस तरह अपना काम अंजाम देते रहेंगे जैसे मसरूफ कारकुन हो, लेकिन वक्त मुकर्रर पर हम तीनों को जहाज से उतरकर समंदर में रूपोश होना होगा। उसके बाद उन झाड़ियों में पनाह लेनी होगी। मैंने कहा ठीक है। बेशुमार सवालात मेरे जहन में मचल उठे थे, लेकिन उस वक्त किसी बहस की गुंजाइश नहीं थी। ओडे ने जो कुछ कहा था उस पर अमल करने के लिए एक निगाह तमाम हालात का जायजा लेना जरूरी था। वैसे ओडे की ये कोशिश खासी सनसनीखेज थी। ठीक है, जहाज यहाँ से चल देगा, सारी रात सफर करता रहेगा। मुमकिन है सारी रात लोगों को हम तीनों का ख्याल ना आए, लेकिन सुबह की रोशनी में किसी न किसी को जरूर ये अंदाजा हो जाएगा कि 3 आदमी जहाज से गायब हैं। इस गुमशुदगी को वो क्या हैसियत देंगे? क्या उनके पास इस किस्म के जराए नहीं होंगे कि वो उस जजीरे को इन 3 आदमियों के बारे में इत्तला दे दें? मुमकिन है कुछ और वक्त भी गुजर जाए, यानी दिन का वक्त भी, और किसी को अंदाजा ना हो सके, लेकिन बिलाखिर किसी न किसी को ये मालूम हो जाएगा। अब इस सिलसिले में सवाल किससे किया जाता? मैं उन झाड़ियों का जायजा लेता रहा। बाकी वक्त कोई खास मसरूफियत नहीं थी। बैरल जहाज पर चढ़ाए जा चुके थे। कोई खास तब्दीली मामूलात में नमूदार नहीं हुई, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया जब जहाज की रवानगी के इंतजामात होने लगे। हम लोगों को अपना अपना काम खुद ही अंजाम देना था। सीढ़ियां हट चुकी थीं और अब समंदर में पहुंचना हमारी अपनी जिम्मेदारी थी। किसी को ये अंदाजा लगाने की फुर्सत न थी कि कौन क्या कर रहा है। मैंने इस बात को पहले ही जहन में रखा था और एक ऐसी रस्सी अपने लिए मुंतखब कर ली थी जो मुझे समंदर तक पहुंचा सकती थी। उस रस्सी को मैंने इंतहाई एहतियात से जहाज के एक ऐसे हिस्से से बांध दिया था जहां दूसरों की निगाहें कम ही पहुंच सकती थीं। अलबत्ता उस रस्सी का फंदा मैंने इस तरह से लगाया था कि नीचे पहुंचने के बाद अगर मैं कोशिश करूं तो वो फंदा बआसानी निकल सके। ये एक मखसूस अंदाज की गिरह थी जिसे जरा सी ढील के बाद झटका देकर अगर खोला जाए तो वो खुल जाती। अलबत्ता इस सिरे को मैंने भीगने से महफूज रखा था ताकि झटका देने से उसके खुलने में कोई दिक्कत न हो। जहाज का आखिरी भोंपू बजा और उसके बाद लंगर उठा दिए गए। अरशे पर शोर शराबे की आवाजें सुनाई दे रही थीं। खलासी जहाज को साहिल से हटा ले जाने के लिए कामों में मसरूफ थे। मेरे सुपुर्द भी यही जिम्मेदारी थी और मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उस समत बढ़ता जा रहा था जहां से मुझे नीचे उतरना था। जरकन और डेक के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उन्होंने नीचे उतरने के लिए क्या इंतजामात किए हैं। ये वसवसे भी दिल में नमूदार हो रहे थे कि अगर वो दोनों किसी तरह अपनी कोशिश में नाकाम हो गए तो मैं तन्हा इस जजीरे पर क्या करूंगा। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि ये कौन सी जगह है और यहाँ के मामलात क्या हैं। साहिल वीरान था और मैंने किसी और चीज को नहीं देखा था। बहरहाल मैं आहिस्ता आहिस्ता उस रस्सी के करीब पहुंच गया। जहाज अब रेंगने लगा था। मैं उसके जरिए नीचे लटक गया और फिर जहाज की फौलादी दीवार के साथ साथ नीचे उतरने लगा। उसका पहाड़ जैसा वजूद मेरी निगाहों के सामने था। पंखे चल रहे थे। मेरा बदन कमान बन गया और मैं चारों हाथ पैरों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। नीचे बिखरी हुई मौजें जहाज के फौलादी ढांचे से टकरा कर लौट रही थीं। जहाज के पंखे पानी को काट रहे थे और वो किसी मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आगे बढ़ रहा था। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल थी, लेकिन बहर तौर मैं पानी के उस धारे में उतर गया जो जहाज की काट से बनता चला जा रहा था। धारे ने मुझे फौरन ही उछाल दिया और जहाज से थोड़े फासले पर फेंक दिया। अगर रस्सी हाथ में न होती तो शायद मुझे खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता, लेकिन आखिरी बार कोशिश भी करना थी जो मैंने नहीं की बल्कि बिखरी हुई मौजों ने की। रस्सी को खुद ब खुद झटका लगा और वो खुलकर नीचे आ पड़ी। मैंने सुकून की गहरी सांस ली। न जाने किस ख्याल के तहत मैंने उस रस्सी को अपने हाथ से नहीं छोड़ा और उसे मजबूती से पकड़े पकड़े नीचे बैठता चला गया। तकरीबन 30 सेकंड तक मैं पानी में गोता लगाए रहा और उसके बाद मैंने जरा सा सर उभारा। जहाज ने अभी बहुत ही कम फासला तय किया था, चुनाचे बेहतर यही था कि मैं उसके मुखालिफ समत तैरना शुरू कर दूं। यही गनीमत था कि समंदर की जानिब रोशनियों का रुख नहीं रखा गया था। मैं अपनी दानिस्त में मखसूस समत की जानिब तैरता रहा जहां पहुंचकर मुझे साहिल की जानिब बढ़ना था और फिर अपने आप को झाड़ियों में रूपोश कर लेना था। आहिस्ता आहिस्ता मैं रस्सी भी समेटता जा रहा था और उसका गुच्छा सा मेरे हाथों में बनता जा रहा था। जहाज के अतराफ में पानी का जो दबाव था उससे निकलने के बाद मुझे अपने काम में बहुत ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। चुनाचे मैं पूरी एहतियात से किनारे की तरफ तैरता रहा और फिर साहिल की नरम रेत पर पहुंच गया। रस्सी का गुच्छा मैंने एहतियातन साथ रखा था। बाज़ औक़ात कोई मामूली सी शय भी काम आ जाती है। साहिली रेत शफाफ और चमकीली थी। यहाँ रुकना एक नई मुसीबत को दावत देना था। बहुत दूर से भी उस चमकीली रेत पर किसी स्याह धब्बे को देखा जा सकता था। चुनाचे फौरी तौर पर मुझे अपने आप को उन झाड़ियों में पोशीदा कर लेना चाहिए था। शायद थकन के बावजूद मैंने भीगी हुई वजनी रस्सी को कांधे पर डालकर झाड़ियों की समत दौड़ लगा दी। थोड़ी देर के बाद मैं लंबी लंबी घास में दाखिल हो गया।
मेरा सांस धूकने की मानिंद चल रहा था। झाड़ियां दूर तक फैली हुई थीं, लेकिन उनके फैलाव का सही अंदाजा लगाना मुश्किल था। ताहम मुझे उनके फैलाव से गरज नहीं थी, मुझे अपने साथियों का इंतजार था। हालत कदरे संभली तो मैंने उनकी तलाश में निगाह दौड़ाई। भूरी रेत के टीले ताहद निगाह बिखरे हुए थे और उनके दरमियान झाड़ियों के ये झुंड बड़े गैर फितरी से मालूम होते थे। ये झुंड सिर्फ उसी एक सम थे, बाकी दूसरी तरफ की रेत बिल्कुल साफ और सपाट थी। मैं घास में घुस तो आया था, लेकिन अब मुझे ये खतरा पैदा होने लगा था कि जहां हशरातुल अर्ज पोशीदा न हो, जगह जगह सुराख नजर आ रहे थे और ये सुराख कुदरती नहीं थे, यकीनन रेत में रहने वाले हशरातुल अर्ज ने किए थे। ताहम उस वक्त उन तमाम बातों से बेनियाज होकर सिर्फ गुजरने वाले वक्त का इंतजार करना था। मेरे कान हर आहट पर लगे हुए थे और जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी वहशत में इजाफा होता जा रहा था। अभी तक ओडे या मैगन के कदमों की चाप नहीं सुनाई दी थी। अगर वो झाड़ियों में होते तो यकीनी तौर पर इतनी देर इंतजार न करते। जहाज की रोशनियां अब भी नजर आ रही थीं, लेकिन वो काफी दूर पहुंच चुका था। साहिल से रवानगी के वक्त उसकी रफ्तार बहुत तेज रखी गई थी, न जाने क्यों। आसमान बादलों से ढका हुआ था, फजा पर तारीकियां मुसल्लत थीं, लेकिन इसके बावजूद मेरी आंखें रात की तारीकी से मानूस हो चुकी थीं और मैं दूर तक देख सकता था। मैं अपनी तमाम ज़हनी कुव्वतों से आहटें सुनता रहा, लेकिन चारों तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो दोनों नीचे उतरने में कामयाब नहीं हुए, या अगर हो भी गए हैं तो समंदर की लहरों के साथ बह गए हैं। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। अब मेरी मायूसी इंतहा को पहुंच चुकी थी कि दफतन मैंने झाड़ियों से थोड़े फासले पर 2 साए देखे। दोनों अचानक ही नमूदार हुए और फिर उनका रुख उन्हीं झाड़ियों की जानिब हो गया। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा था। अब ये अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी नहीं थी कि वो दोनों ओडे और मैगन ही थे, लेकिन उन्हें इतनी देर कैसे लग गई, मैं सोचने लगा। झाड़ियों से निकलना नुकसानदेह भी हो सकता था, चुनाचे मैं वहीं उनका इंतजार करता रहा। दोनों आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों के नजदीक पहुंच गए और फिर ओडे की आवाज उभरी, हे, क्या तुम यहीं मौजूद हो? मैंने उसे फौरन ही जवाब दिया, हाँ मिस्टर ओडे, मैं यहाँ मौजूद हूँ। ओडे ने कहा, बाहर निकल आओ, और मैं बाहर निकल आया। वो डेक जहाँ से बैरल चढ़ाए गए थे उस जगह से बहुत फासले पर था, लेकिन वैसे भी वो सुनसान नजर आ रहा था और यूं लगता था जैसे अब वहाँ कोई मौजूद न हो। इसलिए ओडे ने कोई खतरा न महसूस करके मुझे पुकार लेने में हर्ज नहीं समझा था। वो थके थके से अंदाज में झाड़ियों से थोड़े फासले पर रेत में बैठ गए थे और उनकी आवाज में थकन का सा अंदाज था। मैं बाहर निकलकर उनके नजदीक बैठ गया। आप लोगों ने बहुत देर कर दी। ओडे ने कहा, हाँ, हमारी तकदीर ही थी कि हम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए। दरअसल हमने जिस रास्ते से उतरने का फैसला किया था वहां पर बहुत से लोग जमा हो गए थे और कोई दूसरी जगह ऐसी नहीं थी कि हम चलते जहाज से समंदर में छलांग लगा देते। तकरीबन 40 मिनट के सफर के बाद हमें इसका मौका मिल सका कि हम अपनी मतलूबा जगह से समंदर में उतर जाएं। मेरे अलावा मिस्टर मैगन के साथ भी यही मुश्किल थी। 40 मिनट का सफर तय हो चुका था, जो कम नहीं था, और उसके बाद ही हमें इसका मौका मिल सका कि हम समंदर में उतरें। लेकिन इसी दौरान हम समंदर में काफी दूर जा चुके थे। तुम खुद अंदाजा करो कि जहाज ने 40 मिनट में कितना फासला तय कर लिया होगा, और जिस जगह हम लोग समंदर में उतरे थे वहां तूफानी मौजें थीं। इन मौजों को चीर कर साहिल तक पहुंचना जितना मुश्किल काम हो सकता है उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस यूं समझो ये सिर्फ इत्तेफाक है कि हम तुम दोबारा यकजा हो गए। ओडे फर्श पर लेटकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैगन आस्था से बोला, मिस्टर खान, इस मामले में हमसे ज्यादा खुशनसीब तुम साबित हुए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने हमारी निस्बत ज्यादा जहानत से काम लिया हो और ऐसी जगह नीचे उतरने के लिए मुंतखब की हो जहां इन्हें कोई दिक्कत पेश न आई हो। ओडे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से पड़ा आसमान को घूरता रहा। काफी देर के बाद उसकी कैफियत बहाल हो सकी थी और फिर वो उठकर बैठ गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। तब उसने कहा, बहरहाल इस किस्म के हादसात का हमें मुंतजर रहना चाहिए और मुकम्मल फहम फरासत से उन पर काबू पाने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। मैंने या मैगन ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। पता नहीं मैगन की मालूमात इस सिलसिले में क्या थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अब इस जगह हमें कितना वक्त सर्फ करना होगा और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए क्या इंतजामात करना होंगे। ओडे ने हमें इस सिलसिले में ज्यादा तजस्सुस का शिकार न होने दिया। वो बोला, जिन लोगों ने बैरल जहाज पर चढ़ाए थे उनमें मेरा एक आदमी शामिल था और मैं उसे अपने यहाँ पहुँच जाने के सिलसिले में इत्तला दे चुका हूँ। ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे जहनों में यकीनन तजस्सुस होगा कि अब क्या होगा। ओडे ने मुस्कुरा कर मेरी और मैगन की शक्ल देखी, फिर बोला, मैं कोई काम अहमकाना अंदाज में नहीं करता। आओ अब हमें थोड़ा सा सफर करना होगा। हम दोनों खामोशी के साथ उठ खड़े हुए। बादलों के टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए एक जानिब बढ़ते जा रहे थे और सितारे निकल आए थे।
सितारों की मध्यम छांव में हम तीनों आगे बढ़ने लगे। ओडे यहाँ भी हमारा रहनुमा था। उसका रुख उस डेक से जो समंदर के किनारे आर्जी तौर पर बना दी गई थी जनूबी समत में था। गालिबन उसे उस बारे में कुछ हिदायत दे दी गई होंगी। तकरीबन 2 फरलांग का फासला तय करने के बाद हमें तारीकी में एक टूटी फूटी खंडर नुमा इमारत नजर आई। मैंने फौरन ही अंदाजा लगा लिया कि ओडे का रुख उसी इमारत की जानिब है। इमारत को देखने के बाद उसने सफर की रफ्तार कुछ तेज कर दी थी और थोड़ी दूर चलने के बाद वो बोला, मुमकिन है हमारे दोस्त वहां पहुंच गए होंगे और हमें देर हो गई हो। जहाज से उतरने के बाद जो गड़बड़ हुई वो मेरे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। ये अल्फाज अदा करने के बाद वो खामोश हो गया और थोड़ी देर के बाद हम उस खंडर नुमा इमारत तक पहुंच गए। इमारत के बारे में रात की तारीकी में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो कैसी थी, लेकिन उसकी बोसीदा दीवारें और टूटे हुए दर देखकर ये बात कम से कम साफ महसूस हो जाती थी कि वो सिर्फ एक खंडर है और उसका कोई मसरफ नहीं। हम इमारत के सामने वाले हिस्से में जा खड़े हुए। ओडे झुक झुक कर जमीन पर कुछ तलाश करने लगा था। चंद लम्हे के बाद वो सीधा खड़ा हो गया और अभी हमें ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हमने किसी इंजन की आवाज सुनी। ओडे के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, शुक्र है हम सही वक्त पर पहुंच गए। वैसे भी अगर हम न पहुंचते तो वो हमारा इंतजार रोशनी होने से पहले तक करते। मैंने कहा, मिस्टर ओडे, हमें इस गाड़ी में कहां तक का सफर करना है? वो बोला, खामोश रहो मेरे दोस्त, ये सवालात अभी तुम्हारे लिए और खुद मेरे लिए बेमकसद हैं। आखिरकार हमें वो गाड़ी नजर आ गई जिसकी हेडलाइट्स बुझी हुई थी। ये एक बड़ा सा ट्रक था जो किसी नामालूम जगह से नमूदार हुआ था। ट्रक में गंदम की बोरियां लदी हुई थी। ड्राइविंग सीट से एक आदमी नीचे उतरा। उसने ओडे से मुसाफा किया, लेकिन मुंह से उसने एक लफ्ज भी अदा नहीं किया था। ओडे ने हमें इशारा किया और हम तीनों एक एक करके ऊपर पहुंच गए। बोरियों के दरमियान में खासी जगह रखी गई थी और ये जगह ऐसी थी कि सिर्फ एक आदमी उसमें समा सके। बोरियों को मखसूस अंदाज से ट्रक में चुना गया था। बहरहाल चंद लम्हात के बाद ट्रक चल पड़ा। अब वो हिचकोले खाता हुआ किसी नामालूम मंजिल की जानिब जा रहा था। तकरीबन 20-25 मिनट ये सफर जारी रहा और उसके बाद ट्रक एक जगह रुक गया। किसी ने आगे बढ़कर ड्राइवर से सवाल किया, इन बोरियों में असलहा तो मौजूद नहीं? ड्राइवर ने कहा, नहीं जनाब, आप अपने इत्मीनान के लिए किसी भी बोरी को या सब बोरियों को खोल कर देख सकते हैं। पूछा गया, तुम्हारे कागजात? ट्रक ड्राइवर ने शायद कागजात दिखा दिए। जवाब मिला, ठीक है, जाओ। और हम लोग जो सांस रोके पड़े हुए थे गहरी गहरी सांसें लेने लगे। ट्रक का सफर फिर से जारी हो गया था। काफी दूर पहुंचने के बाद वो एक जगह रुक गया। ट्रक ड्राइवर ने इंजन बंद किया और उतर कर पीछे आ गया। उसने कहा, ठीक है, आ जाओ। और हम फंसते फंसाते उन बोरियों के दरमियान से निकल आए। ट्रक ड्राइवर हम तीनों को साथ लिए हुए एक तरफ बढ़ता चला गया। ये कोई इमारत थी, लेकिन ये इमारत भी तारीकी में डूबी हुई थी। इमारत के अंदर पहुंचने के बाद ट्रक ड्राइवर ने कहा, हम आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, खुदा हाफिज। ओडे खामोशी से इमारत के अंदर पहुंच गया था। इमारत में उसकी मुलाकात 2 अफराद से हुई। ये दोनों भी अजीबोगरीब लिबास में मलबूस थे। झाड़ झनकार से चेहरे वाले उन दोनों अफराद ने आगे बढ़कर ओडे को गले लगा लिया। उनमें एक दरमियानी उम्र का बरतानवी फौजी लॉरेंस था और दूसरा एक और खूंखार सा आदमी फ्रैंक। लॉरेंस और फ्रैंक से मेरा और मैगन का तारुफ करवाया गया और फिर ओडे ने कहा, यहाँ से हमारी तादाद 5 हो जाती है। मैं समझ गया कि ये दोनों अफराद वो हैं जो यहाँ पर ओडे के मफादात की निगरानी कर रहे थे। गौर करने पर अंदाजा हुआ कि उनमें से एक शख्स को मैंने उस वक्त भी देखा था जब शराब के बैरल ट्रकों पर लाद कर डेक पर लाए गए थे। ओडे उनसे गुफ्तगू कर रहा था। वो यहाँ के हालात के बारे में सवालात करता रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए